کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتوں کی مدت ختم ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نگراں حکومتوں کی مدت مکمل ہونے پر ایڈمنسٹریٹرز مقرر کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اس فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ نگران حکومتوں کی مدت جو ہے آئینی جو 90 روز کی تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ پنجاب کی 22 اپریل کو مدت ختم ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اب سپریم کورٹ نے پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے جو ہے پٹیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز کی طرف سے دائر کی جائے گی، جبکہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پٹیشن سابق وزیر اعلیٰ KP محمود خان کی طرف سے اور فواد چودھری کی طرف سے دائر کی جائے گی۔ اس پٹیشن میں سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ چونکہ نگران حکومتیں اپنی آئینی مدت جو 90 روز کی ہے وہ مکمل کر چکی ہیں، اس لیے اب ان کے آگے جانے کے کوئی جواز نہیں ہے اور یہ انتخابات کرانے میں ناکام رہی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اب ان صوبوں میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جائیں جو غیر جانبداری سے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھیں جب تک انتخابات نہیں ہوتے۔ تو یہ پٹیشن آج یا پھر کل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں باضابطہ طور پر دائر کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے لیاقت، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ احتجاج جلسے جلوس کے دوران آنسو گیس کا استعمال روکنے کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے وفاقی حکومت کے جواب جمع کروانے پر درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے احتجاج کے دوران آنسو گیس کے استعمال پر پابندی لگانے کی استدعا کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد اشفاق، بتائیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شیری نواز خان کی دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ عدالت کے روبرو وفاقی حکومت نے یہ جواب جمع کروایا ہے کہ احتجاجی جلسے جلوس پر زائد المیعاد شیل استعمال نہیں کیے گئے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیا کہ اگر آپ کی یہ بات درست ثابت نہ ہوئی تو عدالت توہین عدالت کی کارروائی کرے گی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے روبرو درخواست گزار کے وکیل نے یہ بتایا تھا کہ جنیوا کنونشن کے تحت آنسو گیس کے استعمال پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان جنیوا کنونشن کے معاہدے کا پابند ہے، جبکہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ایکسپائرڈ شیل استعمال کیے جاتے ہیں، لہذا عدالت انہیں روکنے کا حکم جاری کرے۔ آپ کا بہت شکریہ اشفاق۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گاڑی سے 4000 لیٹر ناقص دودھ پکڑ کر طرد کر دیا گیا ہے۔ ملاوٹی دودھ سے بھری گاڑی قصور کے راستے سے لاہور میں داخل ہوئی تھی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اختر سے۔ جی عمران، اس کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، عید الفطر کی آمد ہے اور ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف DG فوڈ اتھارٹی آج میدان میں آئی ہے، جس میں ناقص دودھ سے بھری گاڑی پکڑی گئی ہے۔ 4000 لیٹر دودھ طلب کر دیا گیا ہے۔ ویجیلنس ونگ کی اطلاع پر خفیہ راستے لاہور آنے والی گاڑی نمبر LEX 7115 کا پیچھا کیا گیا، جس میں ملاوٹی دودھ سے بھری گاڑی قصور کچے راستے سے لاہور میں داخل ہوئی، جس میں کارروائی DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے خود اس کی سربراہی کی اور موقع پر کیے گئے تمام ٹیسٹ فیل ہونے پر دودھ نما سفید محلول کو طلب کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ دودھ سے کریم نکال کر گہرا پن بڑھانے کے لیے پانی اور پاؤڈر کا ہی ملاوٹ کی گئی، جس میں پاؤڈر سے ملا دودھ مٹھائیاں تیار کرنے کے لیے سویٹ اسٹوڈنٹس کو سپلائی کیا جانا تھا۔ اس والے سے راجہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ معیاری دودھ کی یقین۔ ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کر رہے تھے اس سلسلے میں، بہت شکریہ آپ کا۔ یوٹیلٹی سٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء کی عدم دستیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر ضروریات کی تمام اشیاء دستیاب ہیں، یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی کمی نہیں ہوگی۔ عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ اسی سماعت کا احوال بتائیں گے محمد اشفاق، جی بتائیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے روبرو درخواست گزار کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر کھانے پینے کی بنیادی اشیاء فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کے مہینے میں حکومت آٹا اور گھی میں دیگر اشیاء فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت یوٹیلیٹی سٹور پر بنیادی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے۔ عدالت کے روبرو وفاقی حکومت نے جواب جمع کروایا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہیں، اگر کسی چیز کی کمی ہوگی تو اس کو فوری طور پر پورا کر دیا جائے گا۔ عدالت نے دائر درخواست نمٹا دی۔ بہت شکریہ محمد اشفاق۔ اپنوں کے ساتھ عید منانا پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز منہ مانگے کرائے وصول کرنے لگے ہیں۔ 29 رمضان المبارک تک بکنگ بھی بند کر دی گئی ہے۔ آبائی گھروں کو جانے والے پردیسی ٹکٹس کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے ہیں۔
लारी अड्डों पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। परदेसियों का अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए वापसी का सिलसिला जारी है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी है। यहां पर अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब जाने वाले परदेसियों के लिए टिकट्स नायाब हो गई हैं। कहीं पर भी टिकट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें अगर बात की जाए तो लिया, मुल्तान और उसके साथ साथ करोड़ पक्का, चौक आज़म, लोधरा और मुजफ्फरगढ़, इसमें जाने वाले तमाम इस वक्त जो परदेसी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं पर ओवर चार्जिंग की जा रही है, मनमाने किराए भी वसूल किए जा रहे हैं। मगर परदेसियों का कहना है कि अगर मनमाने किराए वसूल किए भी जा रहे हैं तो हमें कम अज़ कम टिकट दे दिया जाए ताकि हम अपनों के साथ जाकर ईद की खुशियाँ मना सकें। मेरे साथ इस वक्त कुछ परदेसी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है। सर मैंने ले जाना है, फ़िलहाल टिकटें नहीं मिल रही, टिकटें ब्लैक हो रही हैं, नखरे कर रहे हैं, किराया ज़्यादा मांग रहे हैं, कह रहे हैं टिकटें नहीं हैं। पाकिस्तान 42 नंबरी पे रहा है, या तो ब्लैक पे काम हो रहा है, या चोरी हो रही है, या इधर भिखारी हैं पाकिस्तान में, और तो कुछ नहीं है। अभी टिकटें नहीं मिल रही हैं, सारा निज़ाम चौपट पड़ा हुआ है। कल एक दिन रह गया ईद में, 2 दिन रह गए, घर कैसे पहुंचेंगे। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइएगा कहाँ जाना है और क्या मसला था। जी भाई, हमने शोरकोट जाना है तो टिकट का मसला है, टिकट नहीं मिल रही, ब्लैक में दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे, ब्लैक में भी नहीं दे रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें, कोई हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि शहरी इस वक्त परेशान हैं, को वो ये चाहना चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए किसी न किसी तरीके से। और इस वक्त वो टिकट के हसूल के लिए वो हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि शब्बीर सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बस अड्डों पर टिकट्स के हसूल के लिए परदेसियों की लंबी कतारें लग गई हैं। गाड़ियां ना होने की वजह से परदेसी परेशान हैं। कहते हैं गाड़ियां मुहैया करना हुकूमत का काम है, हम गरीबों का क्या कसूर है, उनका मज़ीद क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। भाईजान हम शोरकोट में जाना है, 2 घंटे से खड़े हैं, हमको ये नहीं टिकट दे रहे, पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं डबल किराया लेना चाहते हैं। जब से मीडिया वाले आए हैं उनको देख रहे हैं, ये जाएंगे तो हम टिकट देंगे, वरना नहीं देंगे। लोधरा जा रहे हैं, आधे घंटे से खड़े हुए हैं इंतज़ार में, गाड़ियों की बुकिंग फुल है, इसलिए खड़े हुए हैं। देखो अभी कोशिश कर रहे हैं कहीं किसी गाड़ी के मिल जाएगी खाली तो चले जाए। 2-3 घंटे से इधर बलोच टर्मिनल जलील हो रहे हैं, कोई टिकट नहीं दे रहे। मेहरबानी करके हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि बसें बढ़ाई जाएं और हमें टिकटें दी जाएं ताकि हम अपने प्यारों के साथ ईद कर लें। रोज़ा रखिया साड़ी मत वजी है, गर्मी भी बड़ी है, जलील करी जा रहे हैं। साड़ी अपील है 1-2 अड्डे वधान, गड्डियां थोड़ियां को वधान ताकि सानू थोड़ी को सहूलत होए, असी टाइम नाल घर जाइए, बीवी बच्चे हैं ईद मनाइए। बहुत तंग हो रहे हैं रोज़े के साथ, हमने शोरकोट जाना है, पता नहीं ब्लैक में दे रहे हैं टिकटें या क्या कर रहे हैं, बड़ा दलील कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ईद के हवाले से सिक्योरिटी, सफाई, ओवर चार्जिंग और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया है। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। सियाहती मकामात पर ईद के मौके पर खसूसी इंतजामात करने की हिदायत भी जारी की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, इजलास का अहवाल बताइए और ये भी बताइए इजलास में और कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं। देखिए, ये निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है जिसमें ईद उल फितर के मौका पर जो दरपेश मसाइल होते हैं उसके हवाले से इंतजामिया को अहदाफ दिए गए हैं, जिसमें सफाई का मसला होता है, ट्रैफिक की बेहतरीन इंतजामी जो मैनेजमेंट होती है वो होता है, और ट्रांसपोर्टर्स के किरायों की जायद जो वसूली होती है वो, और वन व्हीलिंग की रोकथाम। इन जो 4 बड़े अहदाफ हैं इससे न इंतजामिया को आगाह किया गया और उनको कहा गया है कि इस हवाले से जरूरी इकदाम किए गए। इजलास में मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और कहा कि ओवर चार्जिंग किसी सूरत बर्दाश्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी है। कराची और कोयटा जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल हो गई है। मुसाफिरों की टिकटों की बुकिंग में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और लाहौर समेत दीगर शहरों में बसे परदेसियों की यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो अपने इलाकों की, अपने आबाई इलाकों की जो है वो टिकटें कटवाएं और ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ जाकर मनाएं। मगर सूरत हाल ये है कि लाहौर से कराची और कोयटा जाने वाली और कोयटा और कराची से लाहौर आने वाली तकरीबन रेलवे की तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जिनमें 2 जो है वो 18 तारीख यानी कल चल चुकी हैं। जो आज एक ट्रेन जो है वो कोयटा से लाहौर पहुंची है, जो रावलपिंडी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। हाँ जी, हम जा रहे थे मुल्तान, वहाँ पे हमें टिकटें यहाँ से नहीं मिल रही, बहुत बर्थ भी नहीं मिल रहा, टिकटें भी नहीं मिल रही, बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं। गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि परेशानी जो है वो हो रही है क्योंकि टिकटें नहीं मिल रही, मुयस्सर नहीं है। सैलाबी सूरत हाल के बायस रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद ट्रेनों को जो है वो बंद किया गया था, मगर ताहाल इनमें से जो है वो मुतअद्दिद ट्रेनें चलाई नहीं जा सकी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनों की तादाद कम है, मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है। 5 ईद स्पेशल ट्रेनें भी फौरी तौर पर उनकी बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। दीगर ट्रेनों के साथ जो है वो इजाफी कोचेज़ भी नहीं लगाई जा रही, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हैं। शुक्रिया फहद। हाई कोर्ट में ईद से कबल जमानतें करवाने वालों का रश बढ़ गया है। चीफ जस्टिस ने जमानत के केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर की तमाम मातहत अदालतों में ज़मानत करवाने वालों का रश लग गया है। बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज सिर्फ तकरीबन 100 से ज़ायद दरख्वास्त ज़मानतें दायर की गई हैं और इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो अजीज़ जेलों में कैद हैं वो अपनों के साथ ईद मना सकें। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद मीर भट्टी ने भी पंजाब की मातहत अदालतों को हदायत की है कि वो तरजीही बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानतों के फ़ैसले करें। इस वक्त कानूनी माहिर शफकत चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, और लोग ईद की छुट्टियां अपनों के साथ मनाना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये होना तो यही चाहिए, जैसे चीफ साहब ने ये ऑर्डर फरमाए हैं, ये बाकायदा तौर पे उसको बड़ा अर्जेंट बेसिस पे सुनना चाहिए और उसको पूरी तवज्जो से टाइम देना चाहिए। और अगर वो वक्त ज़्यादा भी लगता है तो मैं कहता हूँ बियॉन्ड द पीरियड जो हमारा जो ऑफिस टाइम है उसको भी एक्सटेंड करके अगर जजेस साहबान उसको निपटाएं तो चलें। जो 2, 4, 10, 20 जो लोग आ सकें अपनी फैमिली में उनको वक्त मिले, जिनकी बेल कानून के तहत ही होनी है, तो कम अज़ कम अगर आ सके तो उनको वो राइट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, कानूनी माहिर शफकत चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त अब राजा खुर्रम साहब जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, उनसे हम बात करेंगे। राजा साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए जी, हमारा जो आइन है वो इस हवाले से भी बड़ा क्लियर है। 9 जो उसका आर्टिकल है उसके मुताबिक ये 9 है कि वो कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और फेयर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ जब देंगे तो दैन अगला बंदा आपको होगा इसमें क्लैरिफिकेशन देने के लिए, तो ये मौका जल्दी से जल्दी देना चाहिए। यहाँ अदालतों में जो है वो थोड़ा सा मैं समझ रहा था कि चीफ साहब ने जो ऑर्डर किया उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें अब बकाया जो ब्रांचेज़ हैं उसके हवाले से भी स्पीड करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स की कापी के हवाले से भी यहाँ पे मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ऑर्डर की कॉपी के हवाले से भी मुश्किलात हैं और ज़मानती मुचलके जमा करवाने के हवाले से भी जो साइलिन हैं उनको मुश्किलात हैं। तो उस हवाले से भी ये ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं कि जब किसी मुल्ज़िम की ज़मानत मंजूर हो जाए तो ज़मानती मुचलकों का जमा करवाने का जो प्रोसेस है उसको भी स्पीडी किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जेलों में कैद हैं वो ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मना सकें। मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद शॉपिंग के साथ साथ शहर की सैर भी होगी। चांद रात तक शहरियों के लिए डबल डेकर बस के खसूसी रूट्स चलाने का फैसला हर टूर 4 घंटे का होगा। ये बसें कहां से कहां चलेंगी और कहां जाएंगी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब ईद की शॉपिंग का मिशन जारी है और इसी को देखते हुए डबल डेकर बस प्रोजेक्ट की जानिब से एक खुसूसी सर्विस जो है वो शुरू की गई है और यहाँ से शटल सर्विस जो है मुख्तलिफ जो शॉपिंग के जो नामवर जगह हैं और मॉल्स हैं वहाँ लेकर जाएंगी। तो ये कैसे लोगों को ये सहूलत जो है दी जाएगी और उनको क्या पे करना पड़ेगा, तो डबल डेकर बस प्रोजेक्ट के सरबराह जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा इस सर्विस के हवाले से क्या खसूसियत है? अब की बार हमने ईद का जो प्रोग्राम हमने अनाउंस किया है इसमें हमें शॉपिंग और साइट सीइंग को हमने इकट्ठा किया है। इस राइड के थ्रू लोग साइट सीइंग भी लाहौर की कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये हम अफ्तार के बाद 2 हमारे डेली टाइम चलते हैं और पहला टाइम हमारा 7:45 बजे चलता है, दूसरा टाइम हमारा 8:45 बजे चलता है। जी, एक और चीज़ ज़रा मैं बता दूं कि हमारी जो रेगुलर इसका जो किराया होता है वो होता है 700 रुपीज़ पर पर्सन।
लेकिन लाहौर की खुशी ईद की खुशी के सिलसिले में हमने इसको 200 रुपये पर पर्सन हमने डिस्काउंट दिया और हम पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं जी। अशफाक अहमद डोगर जो हैं वो इस सहूलत के हवाले से बता रहे थे कि ईद तक जो शॉपिंग के लिए खुसूसी जो सर्विस शुरू की गई है, जिसमें रात 8:45 और 8:45 बजे यहाँ से जो है 2 बसों के रूट निकलेंगे और वो जो शहरियों को ईद की शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे और इसके साथ साथ लाहौर की जो है वो भी सैर होगी और उसके साथ साथ ईद के दिनों के लिए भी एक खुसूसी प्लान जो है वो जो बनाया गया है, जिसमें शहरियों को यहाँ से बसें जो है लेकर जाएंगी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। फैशन की दिलदादा ख़वातीन की हाथों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी दिखाई दे रही है। नाखूनों पर दिलकश डिज़ाइन ख़वातीन में मकबूल होते जा रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने ईद के कपड़ों की मुनासबत से नेल आर्ट के लिए पार्लर का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैलून में और यहाँ पर है लड़कियों की काफ़ी तादाद आई हुई है जो नेल आर्ट करवा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदलता है मेकअप जो है और फैशन है उसमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं और यहाँ पर नज़र आ रहा है लड़कियाँ जो हैं वो नेल आर्ट करवा रही हैं और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर नेल आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आजकल काम कैसा जा रहा है और कौन सा फैशन इन है? फ़ैशन तो सभी इन है और वो डिपेंड करता है क्लाइंट के मूड पे और उसके कपड़ों पे, उसके कलर्स पे और बाकी ज़्यादा आजकल कैटाई और मूड स्विंग्स एक मतलब कैटाई है जो आपके हाथों के साथ मूव करने से मूव करता है। क्रोम बहुत ज़्यादा इन है नेल आर्ट में, स्टोन्स बहुत ज़्यादा, वो तो फॉरएवर होते हैं। बाकी कलर्स पे वो डिपेंड करता है कपड़ों के उस पर कि कौन से कपड़े किसको मतलब किसके क्या कलर्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट मैचिंग जो है ना उसके साथ वो कर रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इनका यही कहना था कि जो ख़वातीन हैं वो मैचिंग जो कपड़े हैं उनके साथ साथ जो हैं वो नेल आर्ट करवा रही हैं। स्टोन्स जो नेल आर्ट है वो आजकल ज़्यादा चला हुआ है, तो ये जो सिलसिला है ये इसी तरीके से ही जारी रहेगा। ख़वातीन जो हैं वो उनकी तैयारियाँ इसी तरीके से ही जारी रहेंगी ताकि वो ईद पर जो है सबसे खूबसूरत और मुनफरिद दिखाई दें। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। SSP CIA उमर विरक की रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई तकरीब IG उस्मान अनवर ने उमर विरक को दफ्तर मदऊ करके पेशावराना खिदमात को सराहा। बोले, उमर विरक जैसे फ़र्ज शनास और सीनियर ऑफिसर्स पंजाब पुलिस का असासा हैं। उमर विरक ने शोबा तफ्तीश को नई राहें दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। जी मुजाहिद, बताइएगा तकरीब का अहवाल। जी बिल्कुल इसी तरह से है जी। IG पंजाब की जानिब से साबिक SSP CIA उमर विरक की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। IG ऑफिस में डॉक्टर उस्मान अनवर ने उमर विरक को दफ्तर मदऊ किया और महकमा पुलिस के लिए शानदार पेशावराना खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। उमर विरक जैसे फर्स्ट शनाज और ट्रेंडिंग सीनियर अफसरान जो है पंजाब पुलिस का असासा है, ऐसा कहना था IG पंजाब का। उनका ये भी कहना था कि उमर विरक ने शोबा तफ्तीश में नई राहें जो है वो दी। उनका पुलिस कैरियर पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले नौजवान अफसरान के लिए काबिल तलकीन मसाल जो है वो। आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। मामले की लिहाजा जो JIT बनाई गई है वो गैर कानूनी है और असल में तो एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। JIT तो होनी नहीं चाहिए। जिस किस्म के इस वक्त मामलात हैं कि पुलिस वालों ने कत्ल किए और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जहाँ पे हमारी जो FIR है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जिसमें मोहसिन नकवी IG और CCPO मरकज़ी मुलज़म है। लिहाजा ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि जो बने हैं जो कातिल हैं वही जो है वो तफ्तीश करने पे लगे हुए हैं। ये एक प्रोपोजिशन जो है वो एक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि ये जो मुसलसल एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया जा रहा है सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़, और आज तो आपने देखा कि दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी के नाम के ऊपर उनकी जो बेटे हैं उनकी जो बेटी हैं वो चला रही हैं और उनका ख़ानदान उसको चला रहा है, वो उसने भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आज अपनी स्टेटमेंट जारी की है। और दुनिया भर में ये बड़ा कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कारकुनों के साथ क्या हो रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान में हुआ है
सियासी कारकुनों के साथ इस एक साल में 25 मई गुज़श्ता साल के बाद वो पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी अरशद शरीफ जैसे जर्नलिस्ट को उठा के शहीद कर दिया गया, यहाँ पे टेलीविज़न चैनल्स को बंद कर दिया गया, जो क्रिटिकल सहाफ़ी थे वो मुल्क छोड़ के जाने के ऊपर मजबूर हो गए। 3500 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उन्हें कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ पे 10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें नंगा किया गया। मेन स्ट्रीम लीडरशिप को उठा के जो है वो बग़ैर वारंट्स के लेके गए। आज भी आप देखें अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हो रहा है, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और पूरा हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसका मजाक उड़ाया गया है। और अब ये जो नया मुतालबा डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है कल सुप्रीम कोर्ट से, ये पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है, पाकिस्तान को फेडरेशन स्टेटस आप ख़त्म कर दें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दें। ये अयूब खान साहब का जो 1 यूनिट था वो पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बात जो है वो मान ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर ये है कि सूबे अलहदा एंटिटी हैं, वफाक अलहदा एंटिटी है, और ये बुनियादी हमारे आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें शामिल है। और ये वो मुतालबा था जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, जो सिंध में, ये एक बुनियादी मुतालबा था कि 1 यूनिट ख़त्म किया जाए और फेडरेशन बहाल की जाए। आज पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, पीपल्स पार्टी और ANP, नून लीग की तो चूँकि कोई सियासी इस तरह की कोई उनका इशू ही नहीं है, ना ही उनकी कोई किसी किस्म के ऊपर, आपने माशाल्लाह वो वाहिद पार्टी है जिसकी किसी कोई प्रिंसिपल के ऊपर कोई पॉलिसी आपको समझ ही नहीं आएगी कि इनकी क्या, इसलिए उनको छोड़ दें। पीपल्स पार्टी, ANP जो कोalition का हिस्सा है, जिनके नीचे है ये फेडरल। PTI का 287 हलकों में पार्टी टिकट्स की तकसीम का काम मुकम्मल। 10 सीटों पर इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। 2 सीटें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को दी जाएंगी। 3 पर मुख्तलिफ शख्सियात के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। 5 सीटों को अभी टिकटों के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली जी, बताइएगा। पंजाब में जो इंतखाबी टिकटें जारी करने का मामला है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ को आज सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार है। ताहम तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी टिकटों का जो रिव्यू है वो मुकम्मल कर लिया है और पंजाब के बराह रास्त इलेक्शन के जो 297 हल्के हैं, इनमें से 287 पर पार्टी टिकट्स के हवाले से मुशावरत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 10 सीटों पर इत्तेहादी जमातों और शख्सियात के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, जिसमें 2 सीटें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के तनाजुर में टिकटों का इजरा करेगी कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है कि 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो फिर टिकटों के इजरा। शुक्रिया लियाकत। आसिम इफ्तिखार को SP CIA पंजाब यूनिट का सरबराह तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब की मंजूरी के बाद तमाम अजला को मरासला जारी कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के 36 अजला में खतरनाक डकैत गैंग का डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस तैनाती के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खतरनाक शहरी मुलजमान और डकैत गैंग से आर्मी हाथों निपटने का पंजाब के सतह पर फैसला किया गया है। लाहौर के बाद पंजाब भर में CI यूनिट को अपग्रेड किया जा रहा है। SP आसिम इफ्तिखार को SP CIA पंजाब यूनिट का हेड लगा दिया गया है। IG पंजाब की मंजूरी के बाद DIG अली जवेद मलिक ने तमाम अजलात को मरासला जारी कर दिया गया है और मरासले के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के 36 जिला में खतरनाक डकैत गैंग का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम खतरनाक डकैत गैंग और सारी मुलजमान का यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। पंजाब की सतह पर खतरनाक शहरी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP CRO जो है वो काम करेंगे। बैरून मुल्क फरार होने वाले शहरियों की गिरफ्तारी के लिए भी SP CIA पंजाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को हदायत जारी करेंगे और हिकमत अमली के हवाले से भी बताएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जामियात की खुदमुख्तारी पर एक और हमला करने की तैयारी। हायर एजुकेशन कमीशन को मज़ीद इख्तियारात देने की तैयारी शुरू। हायर एजुकेशन कमीशन को पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को मदद के लिए बुलाने का इख्तियार होगा। वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया।
मज़ीद तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज जी। आतिफ बताएगा क्या लिखा गया है खत में? जी बिल्कुल, जो खत लिखा गया है उसमें तो जो मौजूदा तरमीम है उस पर एतराज़ किया गया है, और जो तरमीम है उसके मुताबिक अब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो किसी भी जामिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया से ताबन ले सकेगी। और इस तरमीम में दूसरी जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि मुल्क भर में जो जामियात के लिए बनाई जाने वाली सर्च कमेटी है उसमें जो कन्वीनर का जो ओहदा होगा वो HEC के चेयरमैन की तरफ से नामजद किया जाएगा। तो इस पर अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और उनका ये कहना है कि ये जामियात की खुद मुख्तारी पर एक हमला है, और इससे जो पहले से मुश्किलात का शिकार तालीमी इदारे हैं उनको मजीद नुकसान पहुंचेगा। और ये भी कहा गया है कि ये सर्च कमेटी बनाने का इख्तियार जो है सूबाई मामला है, तो ये सूबाई। शुक्रिया आतिफ। शहर के 11 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की तामीर और उनको फॉल करने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने LDA को ज़ाती वसाइल से सामान खरीदने की हिदायत कर दी है। सामान के लिए फंड्स ना होने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह इल्तिवा का शिकार होने का अंदेशा है, जबकि पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामान की खरीदारी के लिए इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये शहर के 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर और इनको फाल करने के मामले में LDA को एक दफ़ा फिर सुक्की का सामना करना पड़ा है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत ने शहबाज दौर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने का फैसला तो कर लिया, मगर अभी तक इंतजामिया इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की मशीनरी खरीदने के लिए तजब्जुब का शिकार है। LDA इंतजामिया ने गुज़िश्ता माली साल में 11 में से 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन गुज़िश्ता साल में किसी एक भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को मुकम्मल ना किया जा सका। नए माली साल के 9 माह गुजरने के बावजूद भी एक भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल ना हो सका। ताहम अब ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का ये बड़ा तनाज़ा सामने आया है कि इन कम्प्लेक्सेस का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद इनको फाल करना चैलेंज बन चुका है। पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा रिवाइज्ड PC1 में सामान के फंड शामिल। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक खमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का इजलास कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन नवैयत के ज़ेर तफ्तीश केसेस में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। संगीन जुराइम के केसेस की चलानी की शरह मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत, नाक़िस तफ्तीश, ताख़िरी हरबों, रिश्वत सतानी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक खमियाना की सदारत इन्वेस्टिगेशन अफसरान का अहम इजलास हुआ है। DG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदर, इसके अलावा SSP डिसिप्लिन इमरान की और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी ने शिरकत की है। इन्वेस्टिगेशन विंग के तमाम डिवीजन SP ने भी जो है वो इजलास में शिरकत की है। इसके अलावा CCP लाहौर ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, अंधे कत्ल के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस ने SP से पेंडिंग रोड चलान और अदालतों में जमा करवाने का जो है ब्रेकअप लिया। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक खमियाना के इस हवाले से कहना है कि कत्ल, इक़दाम कत्ल और अंधे कत्ल मुकदमात की डिस्पोजल में जो है मजीद बेहतरी लाई जाए। 16 साल की पुराने ज़ेर इल्तवा केसेस की पेंडेंसी को क्लियर किया जाए और जो चलान है वो पर वक्त अदालतों में जमा करवाए जाए। बिलाल सिद्दीक खमियाना ने मजीद कहा कि 1 माह से पुराना आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। LDA का अहम सड़कों से तजावुजात हटाने का प्लान, ईद के बाद 9 मरकजी शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। अलामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन और दीगर सड़कों पर ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। शहर की अहम शाहराहों को तजावुजात से फ्री बनाने का प्लान बना लिया गया है। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शाहिद करीम की हदायत पर अमल दरामद के लिए LDA की जानिब से प्लान ये बनाया गया है कि ईद के छुट्टियों के फौरी बाद शहर की 9 मरकजी शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें मेन बुलेवार्ड, अलामा इकबाल टाउन और जौहर टाउन, G1 रोड, डॉक्टर अस्पताल से एक्सपो सेंटर तक सड़क से जो तजावुजात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। इसी तरह गुलबर्ग स्कीम, जहूरलाई रोड, हाली रोड से मुत्तसिल इलाका, MM आलम रोड, मिनी मार्केट से मेन मार्केट तक सड़क को मॉडल शाहराह बनाया जाएगा। मुस्तफा टाउन मेन रोड, जुबली टाउन मेन रोड, LDA एवेन्यू 1, शादमान मेन रोड, गार्डन टाउन मेन रोड, कलमा चौक से फैसल टाउन तक जो मुल्हिका सड़कें हैं इन पर जो ग्रैंड क्रैकडाउन है उसका फैसला किया गया है, जिसमें स्कूल, इदारे, अस्पताल, रेस्टोरेंट और कमर्शियल इमारतों को पार्किंग एरिया से तजावुजात के
निगरां वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ईद उल फितर पर सफाई बरकरार रखने के लिए जामे एक्शन प्लान का जायजा लिया गया है। बल्दियाती इदारों के अफसरान को सफाई के अमल की निगरानी करने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको अपडेट करें कि निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ईद उल फितर पर सफाई बरकरार रखने के लिए जामे एक्शन प्लान का जायजा। बल्दियाती इदारों के अफसर को सफाई के अमल की निगरानी करने की हिदायत भी जारी की गई है। जोहर टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट जाली तरीके से एलोकेट करने का केस एंटी करप्शन अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन और मुलजिमान के वकला ने ज़मानतों पर दलाइल मुकम्मल किए। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने केस पर समाअत की है। जोहर टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट जाली तरीके से एलोकेट करने का ये केस है। एंटी करप्शन अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। प्रोसिक्यूशन और मुलजिमान के वकला ने ज़मानतों पर दलाइल मुकम्मल किए हैं। रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को है, लेकिन अवाम को रिलीफ के वादे वफा नहीं हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया मार्केट रेट पर फ़रोख्त हो रही हैं। शहरियों की शिकायत कहते हैं कि जो कीमत ऊपर लिखी है उससे ज़्यादा की स्लिप बना कर दी जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान यूटिलिटी स्टोर पर। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है, लेकिन हुकूमत ने रमज़ान में रिलीफ देने के जो वादे किए थे वो बिल्कुल भी वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं वो मामूल से ज़्यादा हैं, जबकि आटा जो है वो सिरे से मिल नहीं रहा। इस वक्त मैं शादमान मार्केट यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। कुछ शिकायतें जो है वो मौसूल हो रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। सर बताइएगा किस किस चीज़ों के रेट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब ये जो हार बैग है इसके ऊपर 665 रुपये लिखी हुई है और इसके 720 रुपये ले रहे हैं। यानी कि इस तरह हर चीज़ में बढ़ के ये है। आप वो कह रहे हैं जी हमने स्लिप लगाई हुई है, ये सामने स्लिप देख लें। एक बंदा आता नहीं आता उसको पता ही नहीं है कि ये क्या निज़ाम है क्या निज़ाम नहीं है। यहाँ पे तो आता है कि कोई थोड़ा रियायत मिले और बाज़ार से यहाँ पे डबल रेट पे मिलता है, कुछ 100-150 रुपये ज़्यादा भी मिलता है, तो फ़ायदा क्या फिर यहाँ से चीज़ लेने का सस्ती। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था कि जो प्रोडक्ट के ऊपर कीमत लिखी है उससे ज़्यादा जो है वो यूटिलिटी स्टोर वाले जो है वो चार्ज कर रहे हैं, जबकि जो पीछे से कंपनी की तरफ से जो कीमत है उस मुताबिक जो है वो बेचा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अगर ऑयल की बात की जाए तो कम से कम ऑयल 590 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यही ऑयल की जो कीमत है वो 626 रुपये फ़ी किलो तक भी जो है वो बेचा जा रहा है। ये सूरत हाल है। रमज़ान ख़त्म होने को है, लेकिन रिलीफ जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के दावे जो हैं वो धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। जी डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा। डीजी सोशल वेलफेयर की जानिब से रिहायशियों में ईदी और तोहफ़े तकसीम किए गए। मुदस्सिर रियाज मलिक की ईद के दिनों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा किया है। डीजी सोशल वेलफेयर ने जो है वो सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में कायम मुख्तलिफ इदारों में जो है वो रिहायशियों से मुलाकात की। उनमें ईदी और तोहफ़े भी जो है वो तकसीम किए गए। डीजी सोशल वेलफेयर का कहना था कि ईद के दिनों में रिहायशियों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बेसहारा और नागार अफराद को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौका पर इन्हें कम्प्लेक्स में कायम तमाम इदारों के इंचार्जों ने जो है वो अपने अमूर के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर ने इदारों में मुकीम अफराद से मुलाकातें की, मसाइल सुने और दी जाने वाली जो है वो सहूलियात का भी जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल ने मुतल्लिका अफसरान और अमला को इदारों में सफाई का खास ख्याल रखने और रिहाइश पजीर अफराद को मजीद बेहतर। आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। साबिक DIG जुनैद अरशद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस जुनैद अरशद को जेल से एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। अदालत की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमान नूर। जी नुमान। अदालत में साबिक DIG पुलिस सैयद जुनैद अरशद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे केस पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने मजीद समाअत 9 मई तक जो है वो मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। जुनैद अरशद को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जुनैद अरशद की जानिब से जो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई है उस पर हतमी दलाइल के लिए वकला को तलब कर लिया। दौरान समाअत जुनैद अरशद ने अदालत से इस्तदा की कि मैं रोस्टम पर आकर अदालत से इस्तदा करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए, जिस पर अदालती इजाजत के बाद जुनैद अरशद रोस्टम पर आए और अदालत से इस्तदा की कि मैं पिछले कई सालों से बेगुनाह जेल में जो है वो सड़ रहा हूँ,
जबकि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बरी किया जाए। जबकि मेरी साबका बीवी आयशा सुबहानी के कहने पर जो है मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुझे बरी करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने कहा कि जुनैद अरशद, आपके केस का रिकॉर्ड आ जाता है और वकला की दलाइल सुनने के बाद इस पर जल्द फैसला कर देते हैं। जबकि अदालत ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर 9 मई को वकला को दलाइल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासबत से महकमा माहौलियात पंजाब का आगाही कैंप लगाया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक दरख्तों की अहमियत के हवाले से शहरियों को आगाही दी गई है, जबकि डीजी माहौलियात नादिया साकिब ने शहरियों में पौधे भी तकसीम किए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल अर्थ डे के हवाले से आज महकमा माहौलियात की जानिब से एक खुसूसी आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के सिलसिले में लोगों को आगाही दी जा रही है और साथ ही साथ शजरकारी मुहिम के सिलसिले में जो शहरी हैं उन्हें पौधे भी फराहम किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहर में जो है शजरकारी की जा सके, पौधे जो हैं वो लगाए जा सकें और फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात नादिया साकिब मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि आज के कैंप के हवाले से लोगों को आगाही दी जा रही है। अर्थ डे 2023 का जो मौजू और थीम है वो ये है कि हम अपने प्लानट में इन्वेस्ट करें। तो इस इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में ही हमने ये सोचा, ये प्लान किया कि 2000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो हम आज तकसीम करें। इनफैक्ट हम ये रूटीनली डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। दो चीज़ें अहम हैं जी। एक तो ये है कि हमें अपने यंग लोगों को स्पेशली उनको मोटिवेट करना होगा कि वो पौधे अडॉप्ट करें और उनको संभालें। सिर्फ यही नहीं कि लगाएं, बल्कि उनसे 6 महीने बाद, साल बाद उनसे रेगुलरली इसको स्कूल की रेगुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ज़रूरी है कि डिसइन्वेस्ट ना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं और हम इसको 101% इंश्योर करवा रहे हैं कि कोई दरख्त किसी मकसद के लिए काटा ना जाए। हाँ जी, बिल्कुल। आपने डीजी माहौलियात की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि अगर तनावर दरख्त को कटते हुए देखें तो उस हवाले से शिकायत जो है वो महकमा माहौलियात को जो है पहुंचाई जाए, ताकि उस दरख्त काटने वाले के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए